38. Introduction. Psalm 38 is one of the penitential psalms, a group of 7 psalms, 6, 32, 38, 51, 102, 130 and 143, traditionally recognized for their names, themes of repentance, confession and divine mercy. Daniel, what is meant by penitential psalm? पेन से लिखा इसलिए पेनिटेंशियल हुआ. इसका डिफिनेशन मैंने दिया था, नहीं तो अभी आशीष बताएगा जल्दी. What is meant by penitential psalm? Instruction. What is meant by penitential psalm? हाँ? ग्रुप में क्या था? के साथ वापसी शायद कल भी इसके बारे में डिफिनेशन, कल या डे फॉर यस्टरडे. 1 2 3 4 5 6 7 साम्स है. ये पेनिटेंशियल साम्स 7 साम्स है. क्या है? विलाप के साथ प्रार्थना. वो प्रार्थना कैसा है? रिपेंटेंस, प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस. सो देयर आर 7 साम्स अंडर पेनिटेंशियल साम. खुद की पाप के बारे में समझकर विलाप और प्रार्थना. कौन सा भजन संगीत ऐसा वाला? 6, 32, 38, 51, 102, 130 and 143. Traditionally recognized for their themes of repentance, confession and divine mercy. So penitential psalms का 3 मुख्य themes है. क्या क्या है? Repentance, confession and divine mercy. This psalm stands out as a deeply personal lament in which the psalmist, traditionally identified as David, expresses profound sorrow for sin and its consequences. So the author is David, the psalmist is David, and this is very personal, deep lament psalm. कॉन्टेक्स्ट क्या है आपको जल्दी समझ आ जाएगा. If it is very personal, deep prayer of repentance, what it might be? बहुत गहराई से रोते हुए, कुछ समझते हुए माफी मांग रहा है. कौन? कब ये किया? Authorship and date. In the heading you can see, "Do not forsake me, O Lord," a psalm of David for the memorial offering. Psalm 38 attributed to David, the phrase to bring remembrance, Hebrew में lahazkir, remembrance का Hebrew शब्द lahazkir, suggests that psalm was intended as a memorial or petition to remind God of the psalmist's distress and need for mercy. कुछ मुसीबत आया और मुसीबत क्यों आया समझदार हुआ, तब परमेश्वर से पूछ रहा है, मांग रहा है, आपका डिवाइन मर्सी मुझ पर दिखाना. He understood, I am suffering, I am going through this suffering because of the sin that I committed. Now there is only one way: ask forgiveness, confess and ask for divine mercy. The psalmist understood this. While the exact historical context is not specified, many scholars associated this with 2 Samuel chapter 11 and 12. डायरेक्टली नहीं बताया गया कौन सी संदर्भ में लिखा, लेकिन पंडित लोग इस भजन संगीता को 2 सामुएल 11 और 12 से कनेक्ट करता है. वो किसकी कहानी है? बच्चेबा. Second portion or second view, maybe when David gone through physical illness and social alienation, then also he might have prayed to God. समझ आया? In both way, दाऊद के जीवन में मुसीबत परेशानी कब आया था? गलती करने की वजह से ही आया था. Both way it connected with 2 Samuel chapter 11 and 12. Historical context in Israel's worship. This psalm penitential tune aligns with the sacrificial system. Why and when
the people of Israel used to sacrifice? याग बलि कब चढ़ाते थे? When they understood we have done something wrong and the remedy was कुछ याग बलि चढ़ाना है, वो चढ़ाने से पाप से मोक्ष उधर. So in the same way, David understood that he committed something wrong and he is sacrificing himself before the Lord, asking God, forgive me and show your divine mercy. So this is the context of this psalm. इधर तक कितना लोगों को समझ नहीं आया? हाथ उठा. सबका समझ आया इसका मतलब? Division 1 to 2, invocation and plea for mercy. Read verse 1 and 2, baby. O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. For your arrow hath snuck into me, and your hand has come down on me. There is no soundness in my flesh, because of your indignations. There is no health in my bones, because of my sin. Because of my sin. So अभी तक जो बातें मैंने बताया उसमें कनेक्ट करने के लिए एक शब्द आपको मिला, my sin. So the author understood he is going through this kind of illness, persecution or suffering because of his own sin. सैमसन क्या बता रहे हो? किस को आईडी कार्ड नहीं है? खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ. अभी लेने के लिए परमिशन नहीं है. मेरा भी आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं खड़ा हूँ. ये डायलॉग आप हर दिन सुनते हो. मेरा भी आईडी कार्ड नहीं है, जाने सर खड़ा होने के लिए बोला. यू कैन स्टैंड, डोंट वरी, आई एम विथ यू. So verses 1 to 2, invocation and plea for mercy. So verses 1 and 2 में दाऊद ने खुद के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया. देने के बाद आप पूछ रहा है करना दिखाना परमेश्वर. डिस्क्रिप्शन ऑफ सफरिंग, कैसा सताव कैसे चल रहा है, क्या क्या दर्द है, कैसा है अनुभव. वर्सेस 3 to 8. Read verse 3, you will understand. There is no soundness in my flesh, because of my indignation. There is Because no of health- your, not my. No, you. There is no health in my bones, because of my sin. Enough. Social isolation and abandonment, समाज से अलग होकर खुद अकेलापन महसूस कर रहा है. इसलिए शंभू बैठो. वर्सेस 9 to 14. आईडी कार्ड नहीं तो खड़े हो जाओ. Verses 9 to 14, he feels lonely even though he is living with everyone. Why? Because वो जो पाप उनके जीवन में है, किसी को बोलना भी नहीं होगा, शेयर भी नहीं कर पा रहा है. शेयर किया तो क्या होगा? इज्जत गिर जाएगा. 15 to 18, confession and hope. मैं कबूल किया, एक आशा है परमेश्वर मुझे माफी देगा. 15 to 18, confession and hope. 19 to 22, final petition and waiting for deliverance. लास्ट और एक बार माफी मांग रहा है, डिलीवरेंस के लिए इंतजार में है. Literary devices, it uses parallelism, then repetition, like words like wounds, burning, heaviness. Oh, imagery, not repetition. Imagery, wounds, burning, heaviness. ये सब उनका चोट लगा, ये सब शायद उनका अनुभव बता रहा है. शायद ये पाप होने की वजह से मैं ऐसे एक अनुभव से जा रहा हूं करके बताया होगा. It uses inclusio. What is meant by inclusio, Ramesh? जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म करना. पढ़ के समझाओ हमको. पहली बार करेक्ट डिफिनेशन दिया, अभी पढ़ के समझाओ कैसे शुरू हुआ कैसे अंत हुआ.
हे यहोवा हमारे प्रभु मेरा, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। उसमें लास्ट में ऐसा लिखा है कि हे प्रतापमय, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। प्रतापमय कौन सा भजन संगीत पढ़ रहे हैं? ये भजन संगीत का समझाने के लिए बोल रहा 38 का, अभी भी 8 में ही पढ़ा है आप। 38 का पहला और लास्ट वचन पढ़ के बताना हाउ यू कैन से द लिटरेरी डिवाइसेस या डिवाइस इंक्लूसिव इज यूज्ड देयर। पढ़ के बताओ कैसा वो बता सकता है इस लिटरेरी डिवाइस को वहां यूज किया। शुरुआत और अंत सेम बातें में है यार, अलग अलग बात में कैसा है? ओ लॉर्ड बहुत जगह पे लिखा है। बहुत वचन पढ़ने के बाद आपको एक कैरेक्टर, परमेश्वर के कैरेक्टर वहां दिखाई देता है। वो कैरेक्टर क्या है? क्रोध। सो इंक्लूसिव अप्लाई किया। शुरुआत में परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताया, अंत में भी बताया, सेम बात है। बैठ सकता है? थियोलॉजिकल थीम्स या sermon title. Point number 1, sin and divine discipline. Sin and divine discipline. Sin and divine discipline. So in Deuteronomy chapter 28, if you read, you can get the idea. If you commit sin, you have to suffer. ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 में लिखा है पाप किया तो दंड जरूर। इधर दाऊद को ही महसूस हुआ, क्योंकि वर्ष 2 में लिखा है परमेश्वर का आरो, फॉर योर आरोस हैव sunk into me and your hand has come down on me. Deuteronomy chapter 28. Then ह्यूमन फ्रेइलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड. परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना, डिपेंड होना, हम खुद कुछ नहीं कर सकता है। सेकंड वाला थिंग, वी कांट डू एनीथिंग बाय ourselves. We have to depend upon God. Point number 3, confession and forgiveness. Verse 18. I confess my iniquity. I am sorry for my sin. Isolance. कोरोना आने के समय भी आप लोगों का वहां नहीं आया था. The government asked us to be isolated. सबको छोड़कर अलग जाकर जीना. Isolation. सो ये पाप ऐसा इसका जीवन में है, इसलिए सबको छोड़कर अलग होने के एक अनुभव उनका जीवन में आया. किसी को बोलना भी नहीं होगा, बोला तो इज्जत की बात है, किसी ने अगर बोला भी है. सो आइसोलेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. सो इन दैट आइसोलेशन डेविड इज सेइंग यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड. पाप को समझकर जब हम आइसोलेट होगा, वहां परमेश्वर का प्रेजेंस को हम महसूस कर सकता है. घमंड होकर भी आइसोलेट हो सकता है. घमंड होकर ऐसा भी आइसोलेशन कर सकता है खुद को. मैं नहीं किया करके बोलने के समय बाकी लोग हमको छोड़ के चला जाएगा, हम अकेला हो जाता है, वो भी आइसोलेशन है. Psalm 38 in the Psalter, which means ये 38 भजन संगीतकार का जिंदगी का अंदर घुस के हम देखा तो कैसा वाला अनुभव में उन्होंने हैं. He understood that I have committed a sin, and he understood it is revealed to someone also, and he understood it is not hidden, and he understood I have to ask forgiveness, and he is asking forgiveness, and he is going through kind of isolation because of this sin. भजन संगीतकार इस लिखने का समय उनका दिल का अंदर क्या सोच होता है
क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस उनका जीवन में है, हमको ऊपर कितना इतना बातें पढ़ने से हम समझ सकता है। समझ गया? कभी कभी बोलते हैं ना, भाई तेरा दर्द मैं समझता हूं। अभी दाऊद से बोलना, भाई मैं आपको दर्द को, एक गलत किया, चुप बैठा था, किसी ने आकर सामने रिवील किया, अनुभव कैसे होता है अभी? अरे बाप रे, इसको भी समझ आ गया। एंड ही अंडरस्टूड। मैं पाताल के अंदर भी जाकर चुप बैठा था, भी कौन देखा ये बात है? परमेश्वर देखा। सो वो अनुभव के अंदर जाकर ये वचन को लेकर प्रचार करना, दैट इज Psalm 38 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साल्टर। पी साइलेंट है। अभी समझे वो हेडिंग का मतलब क्या है? ये भजन संगीत, ये प्रार्थना करने के समय दाऊद का अनुभव के अंदर हम जाकर देखना, तब प्रचार करने के लिए और थोड़ा क्या बोलता है, अनुभव के साथ प्रचार कर सकता है। फॉर इन द एंड हम बता सकता है ऐसा वाला अनुभव में मैं था या मैं हूं, तब परमेश्वर ने भजन संगीत मुझको दिया, तो प्रार्थना किया। एंड इन द एंड माय प्रेयर इज गॉड, आपके गुस्सा में मुझे, क्रोध में मुझे, comparative analysis, you can compare this psalm with psalm number 6, 32 and 51. सेम बातें हैं, सेम ट्यूनिंग है। भजन संगीत अच्छे, भजन संगीत 32, भजन संगीत 51, सेम ट्यूनिंग। 41 जब तक होगा शंभू तब तक खड़ा होना पड़ेगा, टाइम को देखकर फायदा नहीं। सो Psalm 6, Psalm 32 and Psalm 51, सेम ट्यूनिंग। आप जाकर सबका हेडिंग पढ़ के देखो, क्यों सेम टू सेम है करके मैं क्यों बोला। Psalm 32 speaks about a doctrine, that is doctrine of suffering. Doctrine of suffering. Why righteous suffer? 38. Why righteous suffer? That was our question in Psalm number 37. Who asked this question? David. And the answer is in 38. क्या आंसर मिला कमल? बेबे, why righteous suffer? There is one answer here. Sometimes if we think we are righteous, there is something hidden in our life, and someone will reveal that, then we can understand. Then I have to ask the question, what? So why righteous suffer? There is a question in Bible. कभी कभी शंभू का क्या हुआ? कभी कभी कुछ गलतियां हमारे जीवन में छुपा होगा, उसकी वजह से भी सफरिंग कभी कभी। सो दैट इज नॉट द आंसर। समटाइम्स द राइचस विल सफर अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, जैसा अय्यूब के जीवन में हुआ, जस्ट लाइक द लाइफ ऑफ जॉब। एंड देयर इज वन मोर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंस। Doctrine of repentance. Doctrine of repentance. So under doctrine of suffering, there is one more portion, self-examination. Then doctrine of repentance. Then doctrine of salvation. Soteriology. Doctrine of salvation. Three doctrines in Psalm number 38: doctrine of suffering, repentance, salvation. This psalm in Jewish tradition used in liturgical context, emphasizing repentance particularly during the time of fasting and atonement. यहूदी लोग उपवास और प्रार्थना के समय में इस भजन संगीत को ज्यादा यूज करते थे। For Christian interpretation, as we know, this is a penitential psalm during the time of worship or during the time of Lent or any meeting. You can use this psalm.
because this is a social fact that happens in our life. Sometimes we commit something wrong and we think this is not wrong. What is meant by sin actually? पाप क्या है? व्यवस्था के कभी कभी हम कुछ करते हैं, आपके दोस्त के लिए वो अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए क्या होगा? क्या होगा? अच्छा ही होगा. तो हाउ कैन यू गिव ए डिफिनेशन टू सिन? पाप की डिफिनेशन कैसे दे सकता है? तो मेरे लिए तो अच्छा है. क्या हुआ दत्ता भाई? That is what the definition of sin. Doing against the rule. So rule is followed. So उसकी against हम कुछ करता है, बिब्लिकली हम बताया तो क्या हो जाता है? एंड एक बंदा करने से पूरा समाज में समस्या आया करके बाइबल में बहुत जगह पे. आकान का कहानी, जोशुआ चैप्टर 6 आई थिंक, युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, जो चीज नहीं लेना करके बोला था, चुप चुप के लेके अगर छुपा के रखा, पूरे समाज में क्या हो गया? योना. योना, ओ योना. ओके. Yeah, you can connect that situation with this. When they understood they are wrong. What Jonah said, throw me out of the boat. खुद के बारे में खुद बोला, मुझे क्या करना? So if you understood something like that, you have to say this, or we have to say this. मुझको क्या करना? फेंकने के लिए सब तैयार होगा. प्रार्थना कौन सी तरफ था? प्रार्थना कर रहा था कि वचन द्वारा रहा था? वो मसीह के प्रश्न में वो जगह पे मैं नहीं था, वहाँ लिखा है प्रार्थना किया. प्रार्थना नहीं करे, वजह से वचन द्वारा. कहाँ लिखा हो? प्रार्थना करके लिखा है शायद बाइबल में. शायद आपने कहाँ पे पढ़ा तो सच होगा, मुझे पता नहीं. कौन है वो प्रीचर? इधर का प्रीचर और बाहर का? आप उनको कमेंट डाल के पूछो. In Christian interpretation, I told during the time of Lent or fasting prayer, as we have all the worship section, you can take the psalm and you can tell there is a need of self-examination before we say, Lord, I am clean. मैं righteous हूँ करके बोलने से पहले there is a time of self-examination. क्या हुआ बाद में? Then in a psychological or counseling की जगह पर इस भजन संगीता का उपयोग ज्यादा है. Sometimes we go into time of depression by thinking we are good and it happened. कभी-कभी डिप्रेशन या मेंटली डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा वाला अनुभव में हम चले जाता है. कभी-कभी we think that मैं अच्छा ही था लेकिन ऐसा हुआ. तब योना का समान हमको कुछ बातें समझ आता है, जो करना तो नहीं किया इसलिए ऐसा होगा. Then there is a time of coming back, renewal. सपोर्ट लगा. समझ आया नहीं आया? कभी कभी हमारे जीवन में बहुत निराश होकर बैठता है, बहुत दुखी होकर बैठता है. दोस्त आकर बताता है, भाई तू उस दिन ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ. तब मन के अंदर क्या सोचाता है, फिर क्या फायदा है मैं बैठकर? उसको भूलना ही पड़ेगा और अच्छे आगे जिंदगी जीना ही पड़ेगा. So in that kind of counseling section and all, if you want to counsel someone, you can use this psalm. Don't say you are okay, perfect. There is something wrong. Understand that. Then try to overcome it. Then your life will be. In modern relevance, as I said, again in the present context, you can see or you can take this psalm and you can put it into one verb. Self-examination is necessary in our day-to-day life, each and every second. Each and every second, self-examination is my words, my thoughts, my look, my body language is hurting someone or not, or is it according to the will of God or not. Self-examination is necessary in our life. So that is the only application that I can give. We can give many applications. For example,
There are many people, whenever they get chance to preach from here, they will come and say mobile, 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 and right after that they will go back to mobile. One example मैं बोल रहा हूँ. दानियल का पहला प्रचार, हम इधर आए हैं घूमने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं. 2 दिन पहले इधर का खाने के बारे में शरण सर को आरोप लगाया. मैं कमजोर हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फूड. कभी कभी हम दिखा देता है हनुमान की जैसा, हनुमान पहाड़ लेके जाता है, ऐसा प्लेट भर के खाना लेके जाता है. आत्मिक बात है. सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद को परख कर देखना. सेल्फ एग्जामिनेशन इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी सेकेंड्स as we live. Any doubt from Psalm number 38? आज पूरा डैनियल को ही मिलेगा. There is no compromise. बिस्किट है. क्लिक 38 का बाद